Hello everyone, this is Farhan guys. Today we are going to discuss about O-level chemistry paper 1, multiple choice question, specimen paper, 2023 examination 5070. The duration of paper is 1 hour. Question number 1, let's start. Stearic acid is basically the carboxylic acid, has a melting point of 69 degrees Celsius. And melting point क्या होता है? ये तो हमने आपको बताया ना. Melting point is basically when solid will turn to liquid. Okay. A heated sample of pure stearic acid is cooled. Oh my goodness. So this is, we are cooling the stearic acid. Cooling curve बनेगा हमारे पास. In fact, it is given. Okay. And the temperature is recorded every minute for 30 minutes. A graph of the result is shown. तो आप सब जानते हैं कि ये आपका लिक्विड होगा. And obviously यहाँ पर लिक्विड भी है और सॉलिड भी है. And obviously इस जगह पर सॉलिड होगा, right? Now the question is, which process occurs between 8 and 12 minutes? 8 and 12 minutes. यानी यहाँ से यहाँ तक. Between 8 and 12 minutes. यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? ठीक है. 8 and 12 minutes. So basically liquid solid में convert हो रहा है. Because ये आपका freezing point होगा ना in degree Celsius. So इसका मतलब ये हुआ कि ये freezing का process है. Right answer is C. That's so easy. Question number 2. Which statement are correct? Now the statement read करते हैं one by one. The volume of a gas at constant pressure increases as temperature increases. So that's called Charles' law. हमने यही पढ़ा है आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है. So obviously this is correct. Next, when the pressure of the gas is increased, particles move closer together. Exactly. जब आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हो तो गैसियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड होते हैं. जब गैसियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड होंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और फिर दे स्टार्ट मूविंग. सो दिस इज करेक्ट. Okay. Now in the next statement, the pressure of the gas at constant volume decreases as temperature increases. Guys, when you increase the temperature, obviously kinetic energy increase होगी. Kinetic energy increase होगी तो gaseous molecules की random motion increase होगी. जब gaseous molecule की random motion increase होगी तो at constant volume they will start hitting again and again on the wall of the container, so they will exert more pressure. So ये क्या रहा है? Decreases. So actually it will increase. All right. So third statement is incorrect. Only 1 and 2 is correct, and therefore B is going to be the right answer. Now the next question is, which substance would diffuse most quickly? Diffuse most quickly has two different possibilities. The first one is temperature needs to be high, and obviously lower MR. So first of all, high temperature is here and here, and lower MR. MR of carbon dioxide is 44. ठीक है, ये आप periodic table से जज करके निकालेंगे. MR of neon, MR तो नहीं, AR कह सकते हो because it is a monoatomic element. So I will use AR of neon is given in periodic table, which is 20. So obviously D is going to be the correct answer because at high temperature and lower MR, neon will diffuse much faster. Okay. Question number 4. Which diagram shows the arrangement of particle inside a balloon containing a mixture of the gases nitrogen and oxygen? According to the key, nitrogen को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ऑक्सीजन को हमने इस सर्किल से रिप्रेजेंट किया हुआ है. आप जानते हैं कि नाइट्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और ऑक्सीजन भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. तो जब आप इन दोनों गैसेस को बलून में फिक्स करेंगे या प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली
they start moving randomly and they will mix together. And if they will mix together because of the movement of the particle, obviously C is going to be the right answer. Okay. Question 5. The ion Q2 plus has 3 complete shells of electrons. What is Q? Okay. Let's suppose Q है आपके पास और उसमें 3 complete shells कह रहे हैं, यानी 2 प्लस है आपके पास, तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 है। तो इसका मतलब अगर 2 प्लस चार्ज है तो बैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए थे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 8 2। और ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 20 हैं, और 20 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसके होते हैं? कैल्शियम के होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। सो आई बिलीव ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, सो आप देख लीजिए, ये फर्स्ट कंप्लीट शेल है, ये सेकंड कंप्लीट शेल है, ये थर्ड कंप्लीट शेल है। इसका मतलब ये जो 2 प्लस चार्ज है ये उस वक्त आया जब वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, तो इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। तो ये एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई या आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई? द सिंबल फॉर द आयंस आर शोन। और ये आयंस हैं आपके पास, चलें इनकी एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें 9 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं। Whereas in this case we have 11 protons, 10 electrons and 10 neutrons. 21 minus 11 is going to be 10. 21 minus 11, oh my goodness, 21 minus 11 is going to be 10. Okay, so both of them have same number of neutrons, both of them have same number of electrons, but both of them have different number of protons. So let's see what we have in the options. The fluoride ion contain more electrons than sodium ion. Since number of electron is same, this option is going to be incorrect. Okay, sodium ion contain more neutrons than fluoride ion. Since both of them have same neutrons, is the A be incorrect. The 2 ions contain the same number of electrons as each other. That's the right answer. Next, the 2 ions contain the same number of protons, not different number of protons. So obviously D be galat. 2 isotopes of fluorine are this and this. Using these isotopes, how many different relative molecular mass are possible for the compound with molecular formula this? So I believe C is going to be the right answer, because ये question मैंने आपको previous जो papers हैं yearlies उसमें solve करके दिया है। मैंने इसको तकरीबन 2-3 मरतबा solve किया है yearly papers में, तो you can have that explanation all right already with you. So मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर देता हूँ, आपको शॉर्टकट दे देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। मेरी पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 2 कार्बन्स हैं, 3 क्लोरीन एटम्स हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि तीनों क्लोरीन 35 हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों क्लोरीन जो हैं वो आपके 37 हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास है एक 35 और 2 37 हो। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली आपके पास होगी कि एक 37 हो और 2 35 हो। तो अगर आप एमआर निकालेंगे इन सबको ऐड करके तो इन सबका एमआर डिफरेंट आएगा। एंड ऑब्वियसली एमआर कैलकुलेट करते वक्त हाइड्रोजन को जरूर कंसीडर कीजिएगा। मैंने टाइम की वजह से हाइड्रोजन मेंशन नहीं किए हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8. What happens to an atom of group 2 elements when it forms compound with oxygen? सबसे पहली बात, जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो यकीनन मेटल होगा। And during the formation of compound with oxygen, oh my goodness, that's easy. See guys, this is non-metal. So when metal and non-metal combine together, obviously an ionic compound is formed. And during the formation of an ionic compound, metal always loses electron and non-metal always gains electron. So जितने इलेक्ट्रॉन ग्रुप 2 का एलिमेंट लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा। सही है। एंड सिंस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 2 which why 2 electrons are lost, from the last shell. So let's see what we have in the options.
It bonds with 2 atoms of oxygen. Not really. अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता हूं जो कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो उसमें एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम नहीं होते, ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. It receives 2 electrons from an atom of oxygen. मैंने कहा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. इट शेयर्स, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा ना. रिमेंबर दिस इज आयनिक कंपाउंड, तो शेयरिंग तो नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है. इट ट्रांसफर 2 electrons to an atom of oxygen. That's the right answer. Ethane, C2H6 and ammonia NH3 are covalent compounds. The dot and cross diagram of these compounds are shown. Which statement are correct? A molecule of ethane contains twice as many hydrogen atoms as molecule of ammonia. Now, ammonia का फॉर्मूला आपके सामने है NH3, it has 3 hydrogen atom. इथेन का फॉर्मूला आपके सामने है, it has 6 hydrogen. इसका मतलब इसमें 2 times ज्यादा हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल से, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट, unreacted nitrogen atom has 5 outer electrons. That's also correct because nitrogen belongs to 5. Say next, in a molecule of ethane, the bond between carbon atom is formed by sharing 2 electrons, one from each carbon atom. Yes, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 electron of each element share together so that you will get a single covalent bond. So this is also right. So right answer obviously is A. Okay. Question number 10. Oh my goodness, again calculation. No problem. A compound contains 70% by mass of iron and 30% by mass of oxygen. What is its empirical formula? आयरन का मास है हमारे पास 70, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 56 से, which is given. ऑक्सीजन का मास है 30, हम उसको डिवाइड कर देते हैं 16 से. So guys, let's do some calculation stuff. 70 divided by 56, you will get 1.25, and 30 divided by 16, you will get what? 1.875. Now 1.25 is the least value, so to get the whole number or simplest ratio, 1 is 1.25 से डिवाइड कर देंगे 1.5. होल नंबर में डिटरमिन करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से, तो ये हो जाएगा Fe2, ये हो जाएगा O3, Fe2O3. राइट आंसर इज बी. दैट्स इजी, दैट्स अ पीस ऑफ केक एक्चुअली. कैलकुलेशन सीम्स क्वाइट इजी in these latest papers. Question number 11. The equation for the reaction between ethyne and oxygen is shown. What is the value of X in this balanced chemical equation? Okay, let's solve this. So this is C2H2 of 2 moles plus O2 arrow 4CO2 plus 2H2O. How many oxygens we have now? 4 times 2 8, 8 plus 2 10, so it has to be 5. The right answer is going to be D because the value of X is 5. ये value of X will be 5. Okay. Question number 12. Oh my goodness, again calculation question. 25 cm cube of hydrated copper to sulfate crystals are heated to provide anhydrous copper to sulfate and water. By the way, इन दोनों के दरमियान रेशियो 1:1 का है. Okay, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है. Anyhow, what is the mass of anhydrous copper to sulfate form? दोनों के AMR हमें given है. Okay. In the first step, let's find out the moles of CuSO4.5H2, that is hydrated copper to sulfate. So I have mass 25.0. तो अगर मुझे इस पूरे का AMR निकालना है तो वो 250 होगा. सही है. कैसे होगा 250? देखो 18 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 5 से, जो आंसर आएगा उसमें 160 ऐड करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 250. सही. So 25 divided by 250 is going to be, oh god, what happened? 25 divided by 250 is going to be 0.1 mole. And since molar ratio is same,
तो जो मोल्स इसके हैं एग्जैक्टली वही मोल्स कॉपर सल्फेट के होंगे। तो कॉपर सल्फेट के मोल्स सेम है, 0.1. I know the mass of copper sulfate, it is given in the question. तो मास कैलकुलेट कर लूंगा मैं कॉपर सल्फेट का। So 0.1 into 160. So it's going to be 16 gram. Okay. So right answer is B. All right. Oh God. Again, calculation. My goodness. But it seems like it's easy. The relative formula masses of 4 compounds are given. The student has 1 gram sample of each compound. Which sample contain the highest number of moles of oxygen atom? Okay. क्योंकि मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता हूँ कैलकुलेशन में, बिकॉज आई बिलीव कि आपको स्टेप्स में हर तरह से हैंडल करना आना चाहिए। तो वन बाय वन देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 102, 1 डिवाइडेड बाय 102, 1 डिवाइडेड बाय 102, यू विल गेट 9.8 into 10 to the power minus 3 moles. Oh, okay. मोल्स, चलो यही सॉल्व कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ओके, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, ओके, और यहाँ पर 3। इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये 4 मोल है, ये 3 मोल है। अगर यहाँ पर आपके पास वेट 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 अगर आपके पास ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, अगर आपके पास 9.8 into 10 to the power minus 3 मोल्स हैं, तो बताइए यहाँ पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से और डिवाइड कर देता हूँ 2 से। सो आई विल गेट 0.0147 मोल्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। अब सेकंड देखते हैं। मोल्स ऑफ CuO कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 80। तो 1 डिवाइडेड बाय 80 इज गोइंग टू बी 0.0125 मोल्स। अच्छा, अब मसला ये है कि कॉपर और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे ना, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ये भी 2, ये भी 2, सही। ये 2 मोल, ये 1 मोल। अगर आपने 0.125 0.0125 मोल लिए, 0.0125 मोल्स लिए हैं, तो बताइए ये कितने होंगे? डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6.25 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। सही है। नाउ द नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। तो मोल्स ऑफ H2SO4 देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 98, so 1 divided by 98 is going to be 0.0102 moles, right? I think so कि हमें H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो हमें इसको, है ना, ये H2SO4 है, इसमें वेट 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 इसमें 4 ऑक्सीजन एटम होंगे, तो ये 1 मोल है, ये 4 मोल है। अगर आपने 0.0102 मोल्स कैलकुलेट किया, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 is going to be 0.0
408. Okay. Okay. Last but not the least, कलर चेंज कर लेते हैं. Moles of nitric acid ले लो. 1 divided by 63, you will get what? 1 divided by 63, you will get what? 0.0158. I think so. सही है. और इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लूंगा. 1:3 का रेशियो है. अगर ये 0.0158 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर कितना आएगा? 0.0476. 0.0476 मोल्स. तो सबसे ज्यादा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके पास कहां पर आए हैं? ऑब्वियसली इस डी के अंदर आए हैं, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. वैसे इसका शॉर्टकट भी हो सकता है. शॉर्टकट ये हो सकता है कि 1 मोल में कितना ग्राम है. तो अगर 1 ग्राम है तो बताओ कितना मोल होगा. जो मोल आएंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 3 ऑक्सीजन एटम है. ओके. इसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है. तो हम वो भी कर सकते हैं आपके लिए, बट ये मैंने थोड़ा सा डिटेल दे दिया आपको. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. अगर आप बोलते हैं तो मैं एक पेज लेके उसको भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ. मैंने कहा आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू 102 ग्राम. तो अगर आपके पास 1 ग्राम है तो मोल्स कितने होंगे? तो यहाँ से मोल्स आ गए आपके पास. मोल्स आ गए आपके पास 9.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स. और क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास. ठीक है. तो हम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं. आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं. बट मैंने इसको ऑप्ट इसलिए किया बिकॉज इसमें रीइंफोर्समेंट ऑफ मोल्स बहुत अच्छी होती है. ओके. 50 cm cube of 0.1 mole per dm cube silver nitrate is added to 150 cm cube of 0.05 mole per dm cube sodium iodide in a beaker. तो सबसे पहली तो बात ये कि इक्वेशन बनाओ. सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम आयोडाइड है, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कन्वर्ट होंगे सिल्वर आयोडाइड में, जिसके येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे. येलो प्रेसिपिटेट्स. ओके. और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा. और आप जानते हैं ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो सोडियम नाइट्रेट इज आल्सो सॉल्युबल. ओके. Now we know the concentration and volume, so we can find the moles. और AgNO3, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन काफी डिटेल से किया मैंने. तो ये 50.0 into 0.10 डिवाइडेड बाय 1000. सो यहाँ से मेरे पास कितने मोल्स आ जाएंगे? 50 into 0.1 divided by 1000 is going to be 5 into 10 to the power -3 moles. ठीक है. Similarly, I need to find out the moles of sodium iodide. तो ये होगा 150.0 into 0.05 divided by 1000. I'm running out of space. Just hold on a second, please. इसको यहाँ कर देते हैं. ठीक है. 150 into 0.05 divided by 1000 is going to be 7.5 into 10 to the power -3 moles. And obviously ये आपका क्या हो जाएगा? तो कम कौन सा है और ज्यादा कौन सा है? 50 into 0.1 divided by 1000, 5 into 10 to the power -3, and 150 into 0.05 divided by 1000 is going to be 7.5 into 10 to the power -3. All right. So issue is कि आपके पास ये एक्सेस अमाउंट के अंदर है और ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट. दैट मीन्स कि जब ये रिएक्शन होगा
तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगा आपके पास, यानी सोडियम आयोडाइड का कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगा और ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. लेट्स सी व्हाट ही इज आस्किंग. आफ्टर द रिएक्शन सॉलिड सिल्वर आयोडाइड इज प्रेजेंट इन द बीकर. बिल्कुल सही बात है, ये हमने कहा है कि ये सिल्वर आयोडाइड बनेगा. येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है, ये रहता. वो कह रहा है व्हाट एल्स इज प्रेजेंट. ओह दैट्स इजी भाई, ये एक्सेस अमाउंट के अंदर है तो सोडियम आयोडाइड तो रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है सोडियम नाइट्रेट भी तो बना है ना, ये भी सॉल्युबल होता है तो ये भी अगेन एग्जिस्ट करेगा. तो ये दो चीजें रहेंगी, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम आयोडाइड. तो सोडियम नाइट्रेट रहेगा, सोडियम आयोडाइड रहेगा, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, लॉट ऑफ कैलकुलेशन गाइस. My goodness, another question. 0.1 mole of hydrocarbon is completely combusted. It produces carbon dioxide and water. What is the volume of carbon dioxide produced when measured at room temperature and pressure? सबसे पहली बात ये 1 मोल है. दूसरी बात ये 5 मोल है. अगर आपके पास 0.1 मोल है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? 0.1 into 5 is going to be 0.5 moles, right? Okay, now I need to find out the volume. The volume of carbon dioxide is 0.5 into 24 into 24 is going to be 12 dm cube. So I believe D is going to be the right answer. Okay, question number 16. Carbon electrodes are used to electrolyze aqueous copper to sulfate. पहली बात कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और दूसरी बात कार्बन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हो रही है. सो व्हिच ऑब्जर्वेशंस आर मेड? तो आप जानते हैं दो ऑब्जर्वेशंस बनती हैं हमेशा इससे. पहली, कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड ऑब्वियसली कॉपर होता है ब्राउन, पिंक ब्राउन सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड. तो पिंक ब्राउन सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है. और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये होती है ऑक्सीजन गैस at anode, colorless, odorless oxygen gas is given off at anode. So colorless oxygen gas given off at anode. Okay, आप जानते हैं आपके पास कॉपर आयंस थे, आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास, आप जानते हैं सल्फेट आयंस है आपके पास और हाइड्रोक्साइड आयंस थे. कॉपर आयंस डिपॉजिटेड एट कैथोड, हाइड्रोक्साइड आयंस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गए, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन कंबाइन टुगेदर टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच मेक्स द लाइक इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक. दिस मींस कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. If concentration of copper ions during electrolysis decreases, color fades. The right answer is going to be an A, obviously. Okay, that's the only option we have. Sensible. Electrolysis is used to plate metal coins with silver. Okay. Metal coin को silver के साथ plate करना, electroplate करना. The coin is used as an electrode in a suitable electrolyte, which row is correct. Coin जो होगा वो metal object है. Okay, and metal object needs to be at cathode. Has to be at cathode. तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. हाँ, electrolyte has to be सिल्वर आयन का इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट जिसमें सिल्वर आयंस हो, तो ये सॉल्युबल है और ये भी सॉल्युबल है बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डी. Question 18, guys. An endothermic reaction has an activation energy of X. Which reaction pathway diagram is correct for this reaction? सबसे पहली बात एंडोथर्मिक, तो इसका मतलब ये हुआ energy of product
is greater than reactant. तो obviously option B भी गलत, option C भी गलत. Now the competition exists between A and B, and we need to find out the activation energy for endothermic reaction. तो आप जानते हैं कि activation energy for endothermic reaction ये पूरा barrier होता है, which is represented by this. The right answer is A. ये गलत है, इसलिए option D भी incorrect होगा. Okay. Oh. The formation of liquid water from hydrogen and oxygen may occur in 3 stages. Which stages are endothermic? तो मैंने आपको पढ़ाते हुए कहा था कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, obviously बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है. ये मॉलिक्यूल है, लेकिन देखो एटम्स में कन्वर्ट हो गया, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक हुआ. एटम्स आपस में मिलके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करें, व्हिच मींस इट इज अ बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस. तो अगर ये बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है, इसका मतलब सेकंड इज एक्सोथर्मिक, तो ये गलत हो जाएगा. राइट. आप नोट करें, ये गैस से लिक्विड में आ रहा है, यानी कंडेंसेशन हो रही है. कंडेंसेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. राइट. एनर्जी रिलीज होती है, तो ऑब्वियसली ये भी गलत. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. ओके. Question number 19, answer is B. Question 20. Oh my goodness, that's a tricky question, I believe. Let's see what we have. In 4 separate experiments, 1, 2, 3, and 4, nitric acid is added to an excess of marble chips. ये पहली तो बात ये हो गई कि ये जो तुम्हारा नाइट्रिक एसिड है ना, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है. सही है. तो रिएक्शन बेसिकली नाइट्रिक एसिड कंट्रोल कर रहा होता है, और मार्बल चिप्स एक्सेस अमाउंट के अंदर है. इसका मतलब आपने इसको इग्नोर करना है, इसको अकाउंट में कंसीडर नहीं करना. रिएक्शन करेगा, बट कंक्लूजन या वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट करते हुए इसको यूज हम नहीं करेंगे. ओके. द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म इज मेजर्ड. ओके. इन ऑल 4 experiments the same volume of nitric acid is used. Fine. That's another very important information. कि वो कह रहे हैं the concentration or temperature or both concentration and temperature of nitric acid are changed. That's a vague statement, because temperature से volume of carbon dioxide जो है ना वो different होगा. टेम्परेचर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको पेपर सॉल्व करके दिया, उसमें बताया कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट. टेम्परेचर ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा. टेम्परेचर कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम. टेम्परेचर हैज नथिंग टू डू विद द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलराइट. सो डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं, इससे टेम्परेचर का कोई ताल्लुक नहीं. चेंजेस ओनली रेट, नॉट वॉल्यूम ऑफ गैस. चेंजेस ओनली रेट. सही है. तो इसका मतलब ये जो चेंजेस आ रही हैं मुसलसल, ये इस कंसंट्रेशन की वजह से आ रही है. ओके. तो कंसंट्रेशन चेंजेस, ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो चेंजेस. रेट ऑफ रिएक्शन भी और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोथ. मैं यहां लिख देता हूं. कंसंट्रेशन चेंजेस, रेट चेंजेस, volume of carbon dioxide also changes. Okay. और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस पेपर में कि concentration is directly proportional to rate of reaction. तो rate ज्यादा, concentration ज्यादा, concentration कम, rate of reaction कम. Let's see what we have in the options. Which statement is correct? Okay. First, lower concentration of acid is used in experiment 3 than in experiment 1. Lower concentration of acid. Yes, this might be this seems to be the correct option, I believe. It makes sense actually. Yes. कैसे पता चल रहा है मुझे? देखिए, सबसे पहली बात, एक्सपेरिमेंट 1 का जो टेंजेंट कर्व है वो स्टीपर है. सही है. टेंजेंट 1 का जो कर्व है वो स्टीपर है.
steeper curve, higher rate, सही है। और इसका जो कर्व है आपके पास बहुत ज्यादा लेस स्टीपर है, राइट? ये तो एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, ये लेस स्टीपर है। स्लो रेट, तो भाई अगर यहाँ रेट ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगी, है ना? और अगर यहाँ स्लो रेट है तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी, राइट? सो दिस मेक सेंस। अच्छा, ऑप्शन बी सी डी भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 4 इज फास्टर देन एक्सपेरिमेंट 3। नहीं, रॉन्ग। क्यों? इसलिए क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट 3 है वो बेसिकली इस पॉइंट पर आकर खत्म हो गया, राइट? जबकि एक्सपेरिमेंट 4 जो है ना वो इस पॉइंट के ऊपर आकर खत्म है। तो दोनों का जो रिएक्शन टाइम है वो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट होगा, सही है? तो आप नोट करो, एक्सपेरिमेंट 3 कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो गया, इसका मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, राइट? जबकि वो कह रहा है एक्सपेरिमेंट 4 का फास्टर है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट। The acid used in experiment 2 is of a lower concentration than in experiment 1. Experiment 2, oh my goodness, not at all. देखो, concentration change, जब concentration change होती है, rate of reaction change होता है, volume of carbon dioxide change होता है, सही है? Experiment 2 is of a lower concentration. जाहिर सी बात है, अगर एक्सपेरिमेंट 2 से वॉल्यूम और एक्सपेरिमेंट 1 दोनों से सेम वॉल्यूम आ रहा है तो ये तो मुमकिन नहीं है ना, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 1 की, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वोंट बी द सेम, राइट? व्हिच इज व्हाई ये भी गलत। इफ, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस वॉल्यूम वोंट बी सेम। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the temperature of the acid is the same experiment 1. Temperature has nothing to do with the volume of carbon dioxide, and therefore it is also incorrect. Okay, all right guys, question 21. The equation shows the reaction for the manufacture of ammonia, which changes will decrease the activation energy of the reaction. So जानते हैं कि activation energy changes when we use a catalyst. Okay, so catalyst changes the activation energy, which is represented by EA. The right answer is going to be NA. Okay, I hope it makes sense to you. Question 22. A reversible reaction is shown which changes increase the mass of the precipitate form. तो precipitate जो है वो BiOCl का है, क्योंकि ये solid form में है। ठीक है, और we need to increase the mass of this precipitate, all right? So अगर मैं water को increase कर दूं तो equilibrium forward जाएगा, ये increase हो जाएगा। तो first one is right. Second thing, adding aqueous sodium hydroxide. So when you add sodium hydroxide, obviously reaction में मौजूद HCl से reaction करेगा और reaction करके salt बनाएगा, water बनाएगा, and because of this reaction, concentration of HCl decreases. If concentration of HCl or amount of HCl decreases, equilibrium obviously favors towards right hand side, and obviously ये फिर increase हो जाएगा। तो second भी ठीक है। Adding dilute hydrochloric acid. So when you add hydrochloric acid, amount of HCl increases. This favors the equilibrium towards left hand side, and obviously इसके precipitates increase नहीं होंगे, तो third is incorrect.
तो right answer is going to be Na. Okay. Question 23. Sulfur trioxide is produced by the reversible reaction shown. Reaction is exothermic क्योंकि delta H की value negative. वो कह रहे हैं what change in conditions will produce a greater amount of SO3 at equilibrium. तो अगर मुझे SO3 का amount increase करना है और reaction exothermic है तो मैं temperature को decrease कर सकता हूँ. Temperature reduce कर सकता हूँ मैं. पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन ये है कि ये टोटल मोल्स हैं 3 और ये टोटल मोल्स हैं 2. तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं प्रेशर को इंक्रीज कर सकता हूं. सही है. सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिमूव कर लूं मैं तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. इन तीनों केसेस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, SO3 इंक्रीज होगा. Adding a catalyst has nothing to do with the yield. Increasing the pressure, yes, that's the right answer. 23B. जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा. सही है. याद रखिएगा क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 मोल्स हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स, यहाँ 2 गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं. Increasing the pressure favors the equilibrium towards right hand side and so the amount of SO3 increases. Okay. Next is iron 2 ions reacts with chlorine. आप सब जानते हैं कि iron 2 ions reducing agent होते हैं क्योंकि lower oxidation state metal ions are reducing agent. That's what we have done in the class. आप जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो halogen है and all halogens are oxidizing agent. So ये oxidizing agent है. Okay. Iron 2 ions are the oxidizing agent. Incorrect क्योंकि वो तो reducing agent होते हैं. Iron 2 ions are reduced by chlorine. नहीं, वो तो oxidize हो रहा है क्योंकि oxidation state 2+ के बजाय 3+ हो रही है. So iron 2 ions are oxidized actually. तो ये भी गलत. उसके बाद chlorine is the reducing agent. Incorrect option. Chlorine तो oxidizing agent है. तो right answer is obviously an A because chlorine जो है वो खुद oxidizing agent है, तो दूसरे compound को oxidize करेगा और खुद reduce होगा. तो obviously ये खुद reduce हो रहा है. ठीक है. Question 25. Which reaction involves oxidation and reduction? Chlorine gas reacting with aqueous potassium iodide. बिल्कुल सही बात है. क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा, आयोडाइड आयन को डिस्प्लेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन और खुद रिड्यूस हो जाएगा. तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर. राइट. पहला स्टेटमेंट ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम. यस, इट इज आल्सो रिडॉक्स. मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी. तो ये भी रिडॉक्स है. और रिडॉक्स क्यों है ये भी मैंने करवाया क्लास में. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ 2+. तो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज हाइड्रोजन आयन यहाँ पर +1 है, यहाँ 0 है, तो हाइड्रोजन आयंस आर बीइंग रिड्यूस्ड. राइट. सो इट्स रिडॉक्स. नाउ थर्ड वन इज इनकरेक्ट obviously. Why incorrect? Because HCl and NaOH are reacting together, converting into salt and water. So this basically it is a neutralization reaction, and neutralization is not redox, right? Neutralization, not redox. So 1 and 2 only. So guys, bravo is the right answer. I mean B is going to be the correct option. Okay, because first and second जो है वो ठीक है. 26. Which statement about weak acid is correct? By weak acids partly ionizes or partially ionizes in aqueous medium. Partially ionizes in aqueous medium. So right answer is A. Dissociate बोलो या ionize बोले, doesn't make any difference. Okay. Question 27. A colorless aqueous solution of pH 13 is tested separately with methyl orange indicator and thymolphthalene indicator. आपको याद है thymolphthalene indicator एग्जामिनर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, तो उसने उससे रिलेटेड डिस्कशन की है. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से रिलेटेड बात कर लेते हैं. रेड कलर शो करता है इन एसिड
और येलो कलर शो करता है इन एल्कली, सही है। एंड pH 13 इज बेसिकली एन एल्कलाइन सोल्यूशन। तो इसका मतलब एल्कली में येलो कलर आएगा मिथाइल ऑरेंज का, तो येलो यहाँ भी है और येलो यहाँ भी है। ऑलराइट, हम सब जानते हैं थाइमोल थैलिन इंडिकेटर के दो कलर होते हैं। इन एसिड it is colorless, in alkali it is blue। क्योंकि pH 13 है तो ब्लू कलर होगा, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ओके, क्वेश्चन 28, which pair of reagent is suitable for preparing pure sample of copper to chloride crystals? Okay, guys, option C is incorrect because copper की reactivity हाइड्रोजन से कम होती है, cannot react together। ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है, वो सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। द कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड डी। अब नोट करें, कॉपर टू नाइट्रेट सॉल्युबल, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल। when two soluble salts react together an insoluble salt is formed, but problem is कि copper to chloride is also soluble। तो इसका मतलब मुझे यहां से कोई ऐसा सॉल्ट नहीं मिलेगा जिससे मुझे कॉपर टू क्लोराइड के क्रिस्टल्स मिल जाएं। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड है, इसको आप HCl से रिएक्शन करेंगे, ये कन्वर्ट होगा वाटर में और कॉपर टू क्लोराइड में, तो ये आपका सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, बहुत आराम से। एलिमेंट X forms an oxide of formula X2O5 in which group of the periodic table is X likely to be found? अच्छा, ये जो नंबर होता है ना, ये मैंने क्लास में आपको बताया था, ये जो नंबर होते हैं ये बेसिकली एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये नंबर X की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये X2O5 है और मैं इसको थोड़ी सी बैक कैलकुलेशन करूं और इस तरह से बोलूं कि ये X5+ होगा और O2- होगा, तो ऑब्वियसली अगर 5+ है तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। तो अगर वैलेंस शेल से 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो इसका मतलब एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो लूजेस 5 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, 5+ का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, इसका मतलब एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Question 30. The diagram shows the structure of an alloy. Okay, which statement about alloy is correct? Option D is incorrect because alloy has a chemical formula. Not at all. Alloy जो होता है वो basically mixture of metal होता है, और जो mixture होता है उसका कोई chemical formula नहीं होता, compound का chemical formula होता है। ठीक है, carbon and iron are the only two elements in the stainless steel? Not at all, because stainless steel में कार्बन और आयरन के अलावा क्रोमियम भी होता है और निकल भी होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत। कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड डी। फिर वो कह रहे हैं alloy can only be formed by mixing copper iron with other metals. Not really, because अगर आप ब्रॉन्ज ले रहे हैं तो उसमें कॉपर और टिन आ जाता है, टिन का सिंबल होता है SN। ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है, ओनली तो नहीं हो सकता, ओनली नहीं होगा। तो राइट आंसर इज सी, because alloy is a mixture of metal and metal contain positive ion with the C of D localized electrons. All right, और ये स्टेटमेंट मैंने लिखवाया हुआ है आपको। 31. Which compound has the lowest percentage by mass of nitrogen? Lowest percentage by mass of nitrogen. तो percentage by mass of nitrogen, नाइट्रोजन का AR होता है 14,
because it has 2 nitrogen atom to into 2 divided by 60 into 100, हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर हम दूसरे का देख लेते हैं, 14 टाइम्स 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम है फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाय 132 into 100, ऑब्वियसली यहाँ से एक आंसर आएगा। फिर है आपके पास 14 टाइम्स 3, 3 इसलिए क्योंकि आपके पास 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं यहाँ, डिवाइडेड बाय 149 into 100, तो यहाँ से भी आंसर आएगा। और फिर 14 को मल्टीप्लाई करें आप 2 से, क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं फॉर्मूले में, एक नाइट्रोजन एटम ये है, दूसरा नाइट्रोजन एटम ये है, तो डिवाइडेड बाय 80 into 100। So let's talk about the percentages. Let's do some calculation. तो ये हो जाएगा 28 divided by 60 is going to be 46.6%. Okay, then 28 divided by 132 is going to be 21.2% or 21.2%. ठीक है, then 14 times 3 divided by 149 is going to be 28.1%. Okay, then आपके पास है 14 times 2 divided by 80 is going to be 25%. तो सबसे कम percentage actually B में है, and therefore B is going to be the correct answer. Okay, so 31 is basically B. Oh, organic finally. The diagram shows the structure of 5 hydrocarbons. Okay, which 3 hydrocarbons are isomers of each other? Guys, 3 hydrocarbons. तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि ये और ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो 3 आइसोमर्स तो सिर्फ इन तीनों में आ रहे हैं, राइट? 1 2 and 4। तो 1 2 and 4 राइट आंसर इज ए, क्योंकि वो 3 आइसोमर्स पूछ रहे थे, ये तो 2 आइसोमर्स है ना, वो 3 पूछ रहे थे, तो हमें इन तीनों को लेना है। एंड गाइस, अगर आपको याद हो, आई थिंक आई डिड दीज आइसोमर्स with you in the class. You have these isomers in your register as well. Okay, तो ये बेसिकली आपका पेंटेन है, और ये 2 मिथाइल ब्यूटेन था, अगर आपको याद हो, नाम भी दिए हुए थे मैंने आपको, ठीक है। और ये था 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, एनीहाउ नाम पूछ नहीं रहे, लेकिन हमने आइसोमर्स बता दिए आपको। 33, the diagram shows the fractionating column used in the separation of petroleum. Which row explain why fraction R is collected above fraction S? सबसे अहम बात, और वो ये कि जनाब जी, सबसे अहम बात कि इस जगह पे जो है वो टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि आप हीट कर रहे होते हैं क्रूड ऑयल को, नंबर 1। नंबर 2, इस जगह पर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका एमआर ज्यादा होता है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ओके, रिलेटिवली यहां जितने होते हैं उन सब का टेम्परेचर कम होता है, सही है। लोअर एमआर होता है और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, सो इसका मतलब व्हेन वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा होता है, मॉलिक्यूलर मास भी कम हो रहा होता है। ओके, तो मैं यहां से यहां जब जाऊंगा, oops, wait, लोअर एमआर होगा एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओ गॉड,
lot of stuff to write. Okay, तो वो पूछा boiling point of R, obviously smaller than S, and average molecular mass तो obviously lower होगा than S. तो right answer is going to be D. ठीक है. Next, which compound is an alkane? Alkane का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2. तो अगर मैं 31 यहाँ रखूं तो 31 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 62 + 2 कितना हो जाएगा? 31 है ना. चले तो 31H2 × 31 + 2 तो ये हो जाएगा C31 and H64. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. ओके, फिर वो कह रहे हैं आपसे विच रो करेक्टली डिस्क्राइब एल्कीन. एल्कीन इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड, और जब अनसैचुरेटेड होता है और एक्वस ब्रोमीन से आप रिएक्शन करते हो तो एक्वस ब्रोमीन जो है वो डीक्लोराइज हो जाता है. तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डी. क्वेश्चन 35. A carboxylic acid with molecular formula C4H8O2. तो C4H8O2 का फॉर्मूला ये बनेगा आपके पास CH3 CH2 CH2 and then COOH. सही है. और फिर वो कह रहे हैं and an alcohol with molecular formula C3H8O to form an ester. तो ये जो आपके पास बना है ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये आपके पास अल्कोहल है. तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं CH3 CH2 CH2OH. और आप सब जानते हैं, हम पढ़कर आ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, अल्कोहल से H जाता है और ये दोनों मिलकर बना लेंगे वाटर. स्ट्रक्चर लिखते हुए पहले एसिड का पार्ट आएगा CH3 CH2 CH2 CO. अब इसके बाद अल्कोहल का पार्ट आएगा, तो ये अल्कोहल का पार्ट लिख रहा हूं O CH2 CH2 एंड CH3. गाइस आप ये चेक करो कि ये ऑप्शन कहां पर लिखा है आपके पास. आई मीन ये एस्टर बन गया, ये कहां लिखा हुआ है आपके पास? 1 2 3 4 ये गलत, क्योंकि हमारे पास तो 3 कार्बन एटम का है. तो ये भी गलत और ये भी गलत क्योंकि 3 कार्बन एटम का है. डी इसलिए गलत क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बन एटम नहीं है, 4 कार्बन एटम है. 1 2 3 4 यहाँ है 1 2 3, इसलिए ये भी गलत. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस बी को लिंक कर रहा है. सही है. ओके, क्वेश्चन 37. द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ पॉलीमर इज शोन. तो ऑब्वियसली ये एक एडिशन पॉलीमर है गाइस, क्योंकि एल्कीन से बना है. बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा, एडिशन पॉलीमर. ओके, वो कह रहा है which monomer would produce this polymer. Right answer is obviously A, क्योंकि अगर मैं यहाँ से इस बॉन्ड को रिमूव करूँ, यहाँ से इस बॉन्ड को रिमूव करूँ, तो बिटवीन द कार्बन एटम क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ ए में लिखना है. हाँ, ये हो सकता है कि ये अरेंजमेंट्स ऊपर नीचे हो जाए, वो कोई इशू नहीं है, बट रहेगा इसी तरह से. यार ये ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एज लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द सेम कार्बन. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, नो इशू एट ऑल. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज 38. ओके, 38. Okay. When heated, magnesium reacts with oxygen in the air to form magnesium oxide, a white powder. Okay, a student investigate the change in mass. We need to find out the change in mass that occurs during this reaction. Obviously guys, अगर मैं मेटल टॉन के थ्रू मैग्नीशियम को बर्न करूंगा तो चेंज इन मास मुझे यहाँ से नहीं मिलेगा. नो चेंज इन मास फ्रॉम 1, लेकिन यहां से मुझे मिल जाएगा चेंज इन मास
क्योंकि मैं मैग्नीशियम को बिफोर रिएक्शन वे करूंगा और जब एयर से रिएक्शन करवा लूंगा तो वापस रीवे करूंगा इस ट्यूब को। तो mass of magnesium plus tube before experiment, mass of magnesium plus tube after reaction, ये दोनों चीजें डिटरमिन करूंगा तो चेंज इन मास आ जाएगा। सेम हेयर, क्रूसिबल, मेटल टोंग, मैग्नीशियम, इन सब का मास वे करूंगा बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, तो मुझे यहाँ से भी चेंज मिल जाएगा। तो चेंज यहाँ से भी मिलेगा, चेंज इन मास, और 3 से भी मिलेगा। 2 and 3, राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है। Question 39. A student uses paper chromatography to find the R value for the Fe3 plus ions. The result is shown. तो ये जो है आपके पास distance traveled by solute है, that is your ion basically. Distance traveled by solute, और ये है आपके पास distance traveled by solvent। ठीक है। To make the spot containing Fe3 plus ions more visible, the paper is sprayed with aqueous sodium hydroxide and that precipitate of iron 3 hydroxide forms. Under the condition of the experiment, the RF values of Fe3 plus is given by 1 and the color of the precipitate is this. ये जो आपके पास आयरन 3 हाइड्रोक्साइड्स बने हैं ये रेड ब्राउन होंगे ऑब्वियसली। तो रेड ब्राउन कहाँ लिखा हुआ भाई? रेड ब्राउन यहाँ लिखा हुआ है, रेड ब्राउन यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 के अंदर जो है वो रेड ब्राउन होगा। और अगर मुझे आरएफ वैल्यू मालूम करनी है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, दैट इज x ओवर y। तो x ओवर y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, and so B is going to be the correct answer. Last question of the paper. Tests on aqueous solution of an unknown compound P are shown in the table. Which ions are present in P? Okay. Let's talk about the test. Aqueous sodium hydroxide added, green precipitate soluble in excess giving a green solution. This entire test confirms, oops, my bad, confirms chromium 3 plus, okay? So chromium 3 plus A में भी है, chromium 3 plus B में भी है, either A or B is going to be the correct answer. हम आयरन 2 आयंस नहीं ले सकते, उसकी वजह यह है कि आयरन 2 आयंस की जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स होते हैं, they will remain insoluble in excess NaOH, वो कभी भी ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होते। नेक्स्ट इज dilute nitric acid added, then aqueous barium nitrate, white precipitates, that sulfate ions present. तो सल्फेट जो है वो आपका बी के अंदर है, ओके। dilute nitric acid added to aqueous silver nitrate, no precipitate, इसका मतलब no halide ions। halide का मतलब no chloride, no bromide, no iodide, और इन तीनों को जनरली मैं कहता हूं हेलाइड, तो नो हेलाइड, तो इसका मतलब ये क्लोराइड तो नहीं होगा। ठीक है, क्रोमियम तो है, क्लोराइड नहीं है। यहाँ क्रोमियम भी है, सल्फेट भी है, एंड सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइस। मैंने आपके सारे के सारे एमसीक्यूज के पेपर सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पे लगा दिए आप लोगों के रेफरेंस के लिए। यू कैन यूज देम, ओके, एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज as much as you can, right from 2016 till 2023 specimen paper। ये आपको करने चाहिए, और अगर टाइम मिले तो इससे भी ज्यादा कीजिए पेपर, ठीक है, बिकॉज आपका रिजल्ट जो वो डिपेंड करता है पेपर 1 की मार्किंग के ऊपर, मार्क्स पर। थैंक यू।